Oh, he'd definitely be calling me a sook right now, that's for sure. I'm deeply honoured to have been asked by Philip's family to speak today. I'm humbled to be in the presence of you, his family, his friends and his community. He was so proud of Maxwell, and it's easy to see why today. Taken from the game, his family and loved ones, at the age of just 25, he left the mark on our game that needs no embellishment. I don't know about you, but I keep looking for him. I know it's crazy, but I expect any minute to take a call from him or to see his face pop around the corner. Is this what we call the Spirit? If so, then his Spirit is still with me, and I hope it never leaves. I walked to the middle of the SCG on Thursday night. Those same blades of grass beneath my feet, where he and I and so many of his mates here today have built partnerships, taken chances and lived out the dreams we painted in our heads as boys. The same stands where the crowds rose to their feet to cheer him on, and that same fence he sent the ball to time and time again. And it's now forever the place where he fell. I stood there at the wicket, I kneeled down and touched the grass. I swear he was with me, picking me up off my feet to check if I was okay, telling me we just needed to dig in and get through to tea, telling me off for that loose shot I played, chatting about what movie we might watch that night, and then passing on a useless fact about cows. And I could see him swagger back to the other end, grin at the bowler and call me through for a run with such a booming voice a bloke in the car park would hear it. The heart of a man who lived his life for this wonderful game we play, and whose soul enriched not just our sport but all of our lives. Is this what Indigenous Australians believe about a person's spirit being connected with the land upon which they walk? If so, I know they are right about the SCG. His spirit has touched it, and it will forever be a sacred ground for me. I can feel his presence there, and I can see how he has touched so many people around the world. The tributes to him from cricket lovers kept me going. The photos, the words, the prayers, and the sense of communion in this loss from people across the globe have shown me his spirit is in action. It has sustained me and overwhelmed me in equal measure. And the love of my band of baggy green and gold brothers and sisters have held me upright when I thought I could not proceed. His spirit has brought us closer together, something I know must be him at work, because it's so consistent with how he played and lived. He always wanted to bring people together, and he always wanted to celebrate his love for the game and its people. Is this what we call the spirit of cricket? From the little girl in Karachi holding a candlelight tribute to masters of the game like Tendulkar, Warne and Lara, showing their grief to the world. The spirit of cricket binds us all together. We feel it in the thrill of a cover drive or the taking of a screamer at gully, whether by a 12-year-old boy in Worcester or by Brennan McCullum in Dubai. It's in the brilliant 105-wicket haul, just as significant to the players in a Western Suburbs club game as it is in a test match. The bonds that lead to cricketers from around the world putting their bats out, but saw people who didn't even know Philip lay flowers at the gates of Lords, and that brought every cricketing nation on earth to make its own heartfelt tribute. The bonds that saw players old and new rush to his bedside from wherever they heard the news to say their prayers and farewells. This is what makes our game the greatest game in the world. Philip's spirit, which is now part of our game forever, will act as a custodian of the sport we all love. We must listen to it, we must cherish it, we must learn from it. We must dig in and get through to tea. And we must play on. So rest in peace, my little brother. I'll see you out in the middle.
क्रिकेट की स्पीच में माइकल क्लार्क ने अपने छोटे भाई के बारे में बात की, लेकिन स्पीच खत्म करते करते वो रो पड़े। देखिए माइकल क्लार्क रो पड़े, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। ये तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाएंगे। आसान नहीं था माइकल क्लार्क के लिए अपनी स्पीच को खत्म करना। इरफान पठान जुड़ गए मेरे साथ। इरफान, आरपी स्टूडियो में है, प्रवीण भी स्टूडियो में है, दोनों तेज गेंदबाज। तेज गेंदबाजों के लिए क्या जिंदगी बदली है इसके बाद? हाँ विक्रांत, देखिए जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है, देखिए कुछ ना कुछ तो असर जरूर गिरेगा इसका। बिकॉज मैंने अभी कहीं स्टैट्स पढ़े, मैंने मैच तो देखा नहीं, न्यूजीलैंड के बारे में कि उन्होंने पहले कोई भी बाउंसर निकाला। सो सिचुएशन थोड़ी दिक्कत वाली है, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी ऐसा बाउंसर की हालत में कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि वैसे फास्ट बॉलर जितने भी बैठे हैं या जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं वो जानेंगे कि हम लोग जब भी बाउंसर डालने की कोशिश करते हैं, हम लोग बैट्समैन को हर्ट करने की कोशिश नहीं करते। हम ये कोशिश करते हैं कि उनका ध्यान हटे वहां से, और ताकि हम आगे की जो डिलीवरी रहती है वहां पे डाल के हम लोग उनको आउट करें। लेकिन ये जो हादसा हुआ है उसका जरूर असर गिरेगा। लेकिन मैं चाहूंगा और मेरी सोच भी यही कि इससे बाहर आएंगे सारे बॉलर्स, और वापस जो पुरानी चीजें होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन उसमें वक्त जरूर लग जाएगा। फिल ह्यूज के साथ आप खेले हो, उनके खिलाफ खेले हो? मैं उनके अगेंस्ट में खेला हूँ। मैं एक इंडिया का गेम था वहां पे चेन्नई में, मैं उनके अगेंस्ट में खेला था। बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे। उनकी ये एबिलिटी थी जो ऐसी एबिलिटी थी जहाँ पे आगे की गेम को वो छोटा बना देते थे। उनकी हाइट भी छोटी थी, लेकिन वो जो कट जिस तरह से उनका ऑब्वियसली मेन शॉट हुआ करता था, ऑफ साइड में बड़ा अच्छा खेलते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ा अच्छा खेलते थे दोनों साइड में। बड़ा दिक्कत का काम हुआ करता था, क्योंकि अगर आप जैसे नॉर्मल लेंथ के लिए आप एक डिलीवरी आप बॉलर की एक अराउंड एक एरिया में रहती है, अगर उससे ज्यादा आपको आगे जाना होता है उसी ताकत के साथ डालने के लिए, तो थोड़ी दिक्कत आती है बॉलर को एडजस्ट करने में। तो हमें बॉलर को एडजस्ट करना पड़ता था उनकी बैटिंग स्टाइल के हिसाब से। तो इसी वजह से वो बड़े दिक्कत देते थे बॉलर्स को। शुक्रिया इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। देखिए भारत में भी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेट से जुड़े हैं आहत हैं। माइकल क्लार्क अब से 2 मिनट पहले रो पड़े थे अपनी स्पीच देते देते। वो तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाएंगे। दादा, ये लम्हा बड़ा हो गया है। मौत हुई, उसके बाद आज फ्यूनरल हुआ, माइकल क्लार्क का चोक कर जाना। देखिए बिल्कुल ये लम्हा तो बड़ा है ही है, और ये हर इंसान के साथ होता है। जब कोई अपना बहुत ही अपना का देहांत हो जाता है तो उनके लिए ये चीज़ इमोशनली बहुत ख़राब चीज़ होती है, उनको इमोशनली बहुत वीक कर देता है। और मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ माइकल क्लार्क के इस बिहेवियर से, क्योंकि बहुत समय उन्होंने उनके साथ खेला है, जूनियर क्रिकेट उनके साथ खेला है। दोनों न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते थे। हाल ही में बेशक फिल ह्यूज साउथ ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, लेकिन दोनों एक साथ बहुत क्रिकेट खेले हैं। देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो फिल ह्यूज का डेथ है और क्रिकेटर्स ने जो रिएक्शन दी है, इससे इंसानियत बहुत बड़ा बन जाता है। और एक ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो अपने प्लेयर के लिए ऐसे सोचता है, जो अपने प्लेयर के लिए उनके ऐसी फीलिंग है, इस गेम को और लोगों के सामने बड़ा करके दिखाया। क्योंकि ये लोग ग्राउंड में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, कभी ऑपोजिशन टीम में एक टीम के लिए खेलते, अपने देश के लिए खेलते, और जब कभी कभी ग्राउंड में ऐसे खेलते हैं कि दुनिया के लिए ये क्रिकेट इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज़ है। लेकिन जब ऐसे समय आता है जब अपने फेलो क्रिकेटर्स के लिए किसी का जो इमोशनल साइड देखने को मिलता है, इससे पता चलता है कि ये गेम भी है लेकिन ये इंसान भी हैं साथ में, और ये सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है। दादा, क्रिकेट की मैं बात करूंगा। हमने ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया मानसिकता, ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बात कर ली है। भारत की बात, भारतीय टीम वहां पर पहुंची, उनके 2 अभ्यास मैच थे, एक मैच कैंसिल करना पड़ा फिल ह्यूज के कारण। 4 तारीख को टेस्ट मैच शुरू होना था, पहले हुआ कि होगा नहीं होगा, फिर ये होगा कि 9 तारीख को होगा। सीरीज जो है सारी रिशेड्यूल हुई। भारत के लिए क्या आप वेट कर रहे हैं पहले टेस्ट मैच का? भारत को फायदा होगा क्रिकेट के लिहाज से या नुकसान होगा?
देखिए इस समय तो भारत कुछ नहीं सोच रहा होगा क्योंकि भारत के हाथ में कुछ नहीं है। भारत 4 तारीख से 1-2 दिन का मैच खेलेगा और उसके बाद टेस्ट मैच। देखिए एक चीज है, भारत को समय मिला है ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि वो 23-24 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। पता नहीं उनको प्रैक्टिस कितनी मिली है इस समय, क्योंकि जो बाकी सारे ग्राउंड्स है, एडिलेड हो जहां पे भारत अभी है, वहां पे उनको फैसिलिटीज कितने मिले हैं, क्योंकि फिल ह्यूज साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे तो एडिलेड उनका होम ग्राउंड था, तो वहां पे फैसिलिटीज कितना भारतीय टीम को मिला है नहीं पता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शायद भारत और एक लंबे दिन का मैच खेलता तो अच्छा होता, लेकिन पहला टेस्ट बहुत क्रूशियल होगा भारत के लिए और भारतीय प्लेयर्स को वेट करना पड़ेगा, उनके हाथ में कुछ है नहीं। और जब शुरू होगा टेस्ट मैच तब वो खेलेंगे और भारत को अगर सीरीज में अच्छा करना है तो एडिलेड से अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उनके लिए एक पॉजिटिव चीज जो हुआ है, एक पॉजिटिव चीज नहीं, जो एक डिफरेंट चीज हुआ है कि पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में नहीं, पहला टेस्ट मैच एडिलेड में। एडिलेड में विकेट ब्रिस्बेन थोड़ा स्लो है और उतना बाउंस भी नहीं है, तो शायद पहला टेस्ट मैच एडिलेड में होने से भारत को थोड़ा सा मुश्किलें कम होगी, लेकिन भारत को ये सीरीज अच्छा खेलना पड़ेगा। लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया में है, नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कंडीशंस के साथ यूज्ड टू होंगे। बेशक ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन ये जो डिले हुआ है उस चीज को लेके भारतीय टीम कुछ नहीं कर सकता।